तो स्टार्ट करते अपना नया चैप्टर। दिस बैच इज H2M1। अपना नया चैप्टर है सिस्टम ऑफ। थोड़ा सा लैग आ सकता है, यू मे फील लैग। नया चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बहुत ही शानदार चैप्टर है ना। जस्ट स्टिक टू द, मतलब अच्छे से फील करके समझना। इतना मुश्किल नहीं होता है, इट्स वेरी इजी, है ना। बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला रटने पे फोकस मत करना, अदरवाइज इसके क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला रट के नहीं हो सकते, ठीक है। यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला अलोन, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम कैन मेक अ बेटर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अप्रोच बेस्ड होगा, ठीक है। अगर उसको रट के करोगे तो नहीं हो पाएगा। So what will be the topics of this chapter? First one. The first one will be center of mass. Center of mass. Calculation of center of mass. Although we have already covered some parts of center of mass, but we will cover the remaining part of center of mass. Then, after center of mass, we will cover moment of inertia. Now, order will be different from my package. Order अलग होगा. Moment of inertia पहले करेंगे. Moment of inertia. Then, after moment of inertia, we will cover torque. What is torque? And toppling. आपके में ऊपर दिया हुआ. Then, next will be AMC. AMC. What is AMC? Angular momentum conservation. Just like LMC, this is AMC. सारे टर्म लगभग सेम रहेंगे. AMC, LMC. वहाँ पे फोर्स होता तो there will be torque. The last one is rolling equation. So that is the entire content of this chapter. इसको अलग अलग पार्ट में we will complete, है ना, अलग अलग तरीके से. चलो इतना नोट कर लो. Center of mass. First is center of mass. So center of mass में we have covered, काफी कुछ कवर कर लिया था, है ना. क्या क्या कवर कर लिया था, बस वही बताओ. What is center of mass? Center of mass क्या होता है? Point where we can assume entire mass of system to be present as point mass. कैलकुलेशन कैसे किया था? कैलकुलेशन RCM is equals to M1R1 plus M2R2 and so on, divide by M1 plus M2 plus so on. Correct? बोलो, is it correct? sir. Next, what about VCM? M1, you can take the vector sign if you want. अगर vector wise करना चाहो तो vector wise कर सकते हो. M1 V1 plus M2 V2 plus divided by M1 plus M2 plus. Okay, this is VCM. Next is acceleration. ACM. कैसे निकाल देते हैं? M1 A1 plus M2 A2 plus so on, divided by M1 plus M2 plus so on. ठीक है. So these are the formula of calculation of center of mass. And what is center of gravity or center of force? COG or COF. Point where we can assume entire force of
gravity. When we talk about COG, that is center of gravity, so force of gravity. And when we talk about only center of force or force, any other force, entire force of gravity or any force acting as single force, single force vector. This is called COG. इसको मैं पूरा लिख देता हूँ. COM को भी call center of mass. इसको in short form we will show as CM. CM short form. CG is center of gravity. COG or CG, center of gravity. And CF or COF, center of force, center of force. Is it clear? Clear है? Is it clear? हाँ सर. चलो नोट कर लो कि VCM कैसे निकालते हैं, ECM कैसे निकालते हैं, सब सिखाया था ना. मैंने वो भी कराया था कि जब when you walk over a boat, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर बताया सर. डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है. मैंने बताया था कि इफ एफ नेट, मैंने बताया था कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन क्या होगा, COM स्टेट चेंज नहीं होगा. बताया था ना. इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम देन सेंटर ऑफ मास विल रिमेन्स एट द सेम स्टेट, है ना. उसके स्टेट चेंज नहीं होगा. क्लियर है? इज इट क्लियर? क्लियर है? इस पे मैंने एग्जांपल्स भी कराए थे. एग्जांपल्स क्या था? गन एंड बुलेट. फर्स्ट वन इज गन इन bullet. So when you fire a gun, so this is V, this is capital V. तो क्या हो जाएगा? mv is equals to mv, just to take the momentum magnitude लेने के लिए. And if you want to take it as a vector, so mv vector plus mv vector is equals to 0, है ना. बताया था कि नहीं? ठीक है. So then you will get a negative sign. That means if the bullet is going towards right, then the gun will recoil in the left direction. Hi Anna, clear? The second example was, मैंने बताया था in all of them you can apply m1 x1 is equals to m2 x2 for displacement if external force is 0, and m1 v1 is equals to m2 v2 and m1 a1 is equals to m2 a2. बताया था कि नहीं बताया था? बोलो. Clear? In the second example we have taken boat man and boat concept. So we have taken the formula. If a man is walking over a boat, so case 1, the first case, with respect to earth. So if the man is walking x with respect to earth, and if this boat is going back x, so mx is equals to mx. So if you take the vector, you will get mx vector is equals to minus mx vector. So this is the formula when you take the magnitude only. So this is the formula, and when you take with the vector sign, you will get x vector is equals to minus mx vector divided by m vector. So that means if the man is going towards right, the boat will move towards left. अगर man right में जाएगा तो boat किधर जाएगी? Left में. हाँ या ना? Is it clear?
Second example was with respect to man is walking with respect to boat. Second example यही था ना, the man is walking x with respect to boat, capital X. Okay, so in that case x was coming mx m plus m, and if you take the vector sign you will get a minus sign. X vector is equals to minus mx m plus. Is it clear? कोई डाउट था इसमें? बोलो. सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं मैं, इस पे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी. ठीक है, चलो नेक्स्ट. सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. जस्ट अ मिनट. पीछे वैसे मैंने क्वेश्चंस कराए हुए थे, बट यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला. सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. जस्ट अ मिनट, एक मिनट वेट करिएगा. दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. इज इट विजिबल? दिख रहा है? द सोर्स इज फ्रॉम एस सी वर्मा. SCV का क्वेश्चन है. देखिए कर पाते हैं कितने बच्चे. सॉल्व करें इसे. सिंपल है. कार्ट में अल्टीमेटली whatever काइंड ऑफ, जैसा भी हो, है ना, जैसा भी मोशन, एनी काइंड ऑफ मोशन, वेदर दिस बॉल जम्प्स, कुछ भी हो, अंदर कितना भी जंप करे, अल्टीमेटली दिस बॉल इज गोइंग, कितना यहाँ से कितना कवर कर रहा है, दिस लेंथ. दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द स्लॉट इज L. So ultimately you can only apply LMC. LMC कहाँ लगा सकते हो? You can apply linear motion conservation in x direction. किस डायरेक्शन में? in x direction, because in x direction there is no force, no friction, nothing. But in y direction there is gravity, there is normal, so you can't conserve in y direction. So in x direction this is ultimately moving L with respect to cart. So displacement of the cart will be back side. So x will be m L upon m plus. बताओ मुश्किल है क्या? इज इट डिफिकल्ट? मुश्किल है? सर माइनस नहीं डालेंगे? अरे साइन मैंने बना दिया ना, पीछे डायरेक्शन दे दिया ना. ठीक है. हाँ अगर आप सर. डायरेक्शन दे दोगे तब देन यू डोंट नीड टू टेक द माइनस, वरना फिर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना फिर. ठीक है. नहीं सर, मैंने डायरेक्शन नहीं दिखाया था इफ इसलिए. यू ऑलरेडी टेकन द डायरेक्शन यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, है ना. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, है ना, बहुत इजी है अगर आपने बोर्ड का कांसेप्ट अच्छे से समझा है तो, है ना. इट्स वेरी इजी. समझा कि नहीं? सबको समझ में आया? इज इट क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़े. नाउ वी विल गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना. कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फॉर्मूला. फॉर्मूला तो पीछे देख ही लिया था ना. कौन सा वाला? ये वाला, है ना. ये फॉर्मूला, दीस फॉर्मूला. But what if the body is irregular in shape, है ना. Calculation of COM using integration. Why we go for integration? Integration कब क्यों करते हैं बताओ? When we need the integration कब करते हैं? When we have the irregular shape. अगर irregular shape होता है तब कैसे करेंगे? Suppose you are having this shape. This is the shape. ऐसा irregular shape है. We are having this irregular shape as this one, and this one we just need to calculate the center of mass. This is the origin. You need to calculate center of mass from this point. कैसे करेंगे of this
irregular shape. This is the solid irregular shape. How we will calculate center of mass? बताओ कैसे करेंगे? देखो ultimately the formula of center of mass is how we calculate RCM. How we calculate RCM? That is m1 r1 plus m2 r2 है ना, plus so on divided by m1 plus m2. So ultimately what we are doing, we are taking each mass into my position plus mass into my position divided by entire mass. Okay, so the formula will be, you have to take a differential mass, dm mass here, and take the position r, okay, take the position r. So what will be the formula when you go for integration? So RCM will be r r1 d1 dm1 है ना, r1 dm1 plus r2 dm2 and so on divided by dm1 plus dm2 plus so on. So ultimately what we are doing, we are integrating this term, so formula will become r dm integration from 0 to capital M divided by integration of dm from 0 to capital M. So formula of RCM will be, you don't need to take this limit because you don't know whether you are integrating with respect to R or with respect to M. You just need to take that the formula will look like this: RCM is equals to RDM by DM integration of DM. यही फॉर्मूला आता है. दिस फॉर्मूला यू हैव टू लर्न. कुछ करना नहीं है, कुछ नया नहीं है. m1 r1 प्लस m2 r2 होता था, ऊपर r dm का इंटीग्रेशन हो गया, नीचे m1 प्लस m2 होता तो dm इंटीग्रेशन हो गया. इज इट क्लियर है? ये फॉर्मूला याद रहेगा, r dm बाई dm का इंटीग्रेशन. बोलो ठीक है? मेरी आवाज आ रही है? इज इट ऑडिबल? Yes, sir. यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला. कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? याद हो जाता है वो, परेशान मत हो, याद हो जाता है. सेम फॉर्मूला यू कैन गो विद द VCM. VCM के लिए भी आप यही लगा सकते हो. VCM ACM के लिए भी यही लगा सकते हो. यू जस्ट नीड टू रिप्लेस R with V and R with A for VCM and ACM. ठीक है, इसको नोट कर लो पूरा. Why we need this formula? Because suppose if you are having a question that you are having a rod, you are having a regular rod, uniform rod, you are having a uniform rod, and question is asking where will be the center of mass. This rod is of length L, this one is uniform rod. So do we need to calculate COM? Find COM, or you can just simply put it on center. क्या कर सकते हैं? यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है? इट्स एट सेंटर ना. कहाँ आता है? इट विल बी एट सेंटर. आया ना? सो इट विल बी एट COM. कहाँ पे होगा? इट विल बी एट L/2. इज इट करेक्ट? विदाउट एनी कैलकुलेशन. Yes, sir. एंड स्टिल इफ यू वांट टू गो विद द इंटीग्रेशन यू कैन फाइंड इट. कैसे? इंटीग्रेशन से भी आप निकाल सकते हो. अगर आप करना चाहो नहीं कि नहीं हम तो करेंगे, निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? देखो, this rod is of mass m, so what will be lambda will be m by L. Is it correct? This is the lambda. Yes, sir. कितना है? m by L. mass per unit length, linear mass density. कुछ याद आया? linear mass density कुछ याद आया? 3 टाइप की डेंसिटी बताई थी मैंने. हाँ, sir. And you want to calculate the center of mass, so you are taking any point x, any point dm mass. So this dm mass, what will be this dm mass if the width is dx? So dm mass will be, what will be dm mass? It will be lambda into my dx. Is it correct? When you multiply with this lambda with the dx part, you will get dm mass. हाँ या ना? Is it correct? Correct कि हाँ, नहीं? sir. So just apply the formula. What will be XCM? XCM will be x dm
by integration of dm. What we are doing, we are integrating from x equals to 0 to x is equals to l. Okay, just apply this limit. Okay, so x dm, x, we, what we are doing, we are applying this formula r dm by dm integration, so x dm by dm integration. So x, what is dm? Dm is m by l dx. Integrate this because here is dm, sorry, dx, so limit will be 0 to l, and in denominator the dm will integrate from 0 to total mass is m. Okay, that's why I told you that you don't need to go with the limit, क्योंकि लिमिट का पता नहीं कहाँ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इसलिए फाइनल फॉर्मूला यही याद करना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m by l is constant. When you integrate x, you will get x square by 2. Limit will be 0 to l. When you integrate dm, you will get m. So you can eliminate this m. So what will be the answer? Answer is l by 2. बताओ, आंसर भी वही आ रहा है ना जो आपने सीधे अंदाजे से किया था. आया था कि नहीं? आ गया? ठीक है, बोलो l by 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? When you put the value l, तो ये l square by 2l हो जाएगा. It will be l by 2. Is it clear? Yes, sir. लेकिन क्यों कर रहे हैं ऐसा, है ना? जब सिंपली हमको वी कैन गेस दैट दिस इज l by 2, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अगला क्वेश्चन कर पाए, है ना? अगला क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, दैट विल बी हैविंग वेरिएबल लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी विल बी वेरिएबल देयर. तो वेरिएबल होगा तो यू हैव टू टेक दिस इंटीग्रेशन टूल, उसके बगैर आप नहीं कर सकते. ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन कि इसको कैसे किया है, समझ लो. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ लो, जितने बार पूछो बता देंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन अपने आप करना पड़ेगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन same case, rod, but non-uniform rod. This time lambda is m by l x square by l cube. Yeah, this will be dimensionally correct. It's dimensionally correct. So lambda is dependent on x. Lambda is, this is x equals to 0, this is x is equals to l. So lambda is dependent on the distance of this point. Okay, so lambda is variable. Find center of mass. Find center of mass. ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है. करो, जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होगा इसका? देखो, सभी लोग सॉल्यूशन देखें इसका. देखो, when you take this rod and when you take a dm mass, dm dx, this is x. Okay, so what will be dm mass? It will be lambda dx, that is equals to ml cube dx x square. Correct? Is it correct? Just apply the formula. xcm is equals to x dm divided by integration of dm. So when you put the value of dm, it will become x m x square by l cube dx. Integrate this term from 0 to l, and when you take dm, you need to write mx square dx by l cube. Integrate from 0 to l. ठीक है, you can eliminate the constant term. Constant term को you can eliminate. Constant term को you can eliminate. So you will get x cube integration divided by x square dx integration from 0 to l, from 0 to l. अब मुझे फाइनल आंसर खुद करके बता दो. अगर चीज़ें इतनी तो समझ में आ गई होंगी ना, मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ डीएम की वैल्यू पुट कर रहा हूँ. आया ना?
बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? सर सडल आप वो डीएम के इंटीग्रेशन वाला पार्ट वापस बता सकते कुछ हो? नहीं करना है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ डीएम, पुट द वैल्यू ऑफ डीएम, डीएम का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, और क्या करना है, नथिंग। तो अजय हम यहाँ पे वैल्यू क्यों डाल रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं डाली थी? क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में अगर वैल्यू डालते भी तो डीएम का क्या डालते हैं आप, लैम्डा डीएक्स डालते हैं, ये डालते हैं ना, हाँ तो वही आता है आपका। पिछले क्वेश्चन में भी करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में मान लो आप डीएम ना डालते, आप ऐसे करते, किस तरीके से, इस तरीके से करते हैं, डीएम की जगह वैल्यू डाल देते हैं कितना, लैम्डा डीएक्स, इंटीग्रेट करते हैं इसको, ठीक है। तो लैम्डा है m बाई एल, ये कट जाता है इससे, तो क्या इंटीग्रेशन होता है उसका, ऊपर होता एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to l, और नीचे होता डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l, तब भी आपका l/2 ही आंसर आता है, ठीक है। ओके सर, हाँ ठीक है, अल्टीमेटली यू हैव टू पुट द वैल्यू, ठीक है, क्लियर है, यस सर। आपका आंसर वही आता है, ठीक है। m बाई एल कट जाता है, m बाई एल को काट देते हैं आप, ठीक है, ऐसे कट जाता है ये आंसर, तो यही आंसर आता है, ठीक है। क्लियर, इज इट क्लियर, अब समझ में आ गया, सडल सडल क्लियर, यस सर। चलो नोट कर लो सभी लोग, आंसर तो बता दो भाई कितना आ रहा है, इज इट कमिंग 3l/4? या सर। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब समझ में आया व्हाई वी नीड दिस फॉर्मूला, ठीक है, अब समझ में आ गया सबको, बोलो। हाँ सर। we will be need of this integration formula, कब जरूरत पड़ेगी, when the function is there is some variable thing है ना, जब भी variable होगा तो इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। अब द सेम फॉर्मूला यू कैन अप्लाई फॉर वेलोसिटी एज वेल एज पोजीशन, सबके लिए लगा सकते हो, आर डी एम बाय डी एम इंटीग्रेशन, देन व्हाट विल बी वी सी एम, इट विल बी वी डी एम बाय डी एम इंटीग्रेशन, देन व्हाट विल बी ए सी एम, ए सी एम क्या आएगा, ए डी एम बाय डी एम इंटीग्रेशन, इज इट करेक्ट, सारे के सारे सब समझ में आ गए, सेम है, एक बार याद कर लो किसी चीज को, सारे के सारे वैसे ही आएंगे, क्लियर, क्लियर है, इज इट क्लियर, सर यस, सर एक बार पीछे वाली स्लाइड पे जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हैं। सर इधर एम एंड एल क्यूब को कैंसिल क्यों किया? क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अगर होते हैं दैट आर नॉट चेंजिंग, वो किसी का फंक्शन नहीं, उनको आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। ये वाला m इस m से कट गया, ये वाला l क्यूब इस l क्यूब से कट गया, ठीक है, क्लियर, क्लियर हुआ, लेकिन एक्स स्क्वायर को मत काट देना एक्स स्क्वायर से, क्योंकि दैट इज नॉट कांस्टेंट, ये वेरिएबल है, समझा, क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर। चलो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, वो बताना, देखिए आप कर पाते हो कि नहीं। टी जॉइंट वाला कराया था ना मैंने, टी जॉइंट वाला, हाँ सर। सर क्या? टी रॉड, जो टी टी शेप में रॉड थी, टी शेप में कराया था वो। You need to calculate the center of mass, this is the rod, then a square plate, then a disc, this is a disc। सर ये शायद से नहीं करवाया था, ये वाला नहीं कराया था, तभी तो अभी करा रहे हैं, टी शेप वाला कराया था मुझे याद है, अरे ऐसा वाला कराया था यार, टी शेप का रॉड था ऐसे वाला। हाँ सर टी शेप का करवाया था, ये ब्लॉक स्क्वायर और सर्कल नहीं करवाया था। हाँ तो ये तो अभी करा रहा है ना, ठीक है। दिस रॉड is of length L, this square plate is of length L, and this disc
is of radius L. समझ में आया? Each of them are of mass m, m, m. This is the origin 0,0. Find center of mass. Find COM. सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? चलो कैसे आएगा इसका आंसर देखो. वेरी सिंपल, कुछ करना ही नहीं है इसमें. इतना जो सोच रहे हो, मुझे लगा बहुत जल्दी आंसर दोगे इसका. कुछ नहीं करना है. टेक द पोजीशंस. इसका पोजीशन कहाँ पे आएगा? दिस विल बी L/2, 0. दिस विल बी L plus L/2. So this position will be 3L. This is L plus L/2. L plus L/2 कितना होता है? 3L/2, 0. Clear? And this will be L plus L plus L. So this position will be 3L, 0. बताओ सही है कि नहीं? YCM तो 0 ही आएगा. हाँ सर. What will be axiom? M into में L/2 plus M into में 3L/2 plus M into में 3L डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज 3m. कितना आता है? कितना आता है? L/2 plus 4L, 4L 7, 7L/3. इज इट करेक्ट? करेक्ट है? नहीं 7L नहीं आएगा. इट्स 5L, 5L/3. बताओ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर? हाँ सर. किसी का मैच किया है आंसर? किसी का आया था आंसर? चलो नोट कर लो. नाउ वी विल टेक सम कैविटी बेस्ड क्वेश्चन. कैविटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे? अच्छा ये बताओ, व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए स्फीयर? स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? बताओ. व्हाट विल बी द सेंटर, वेयर यू विल गेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए स्फीयर? सॉलिड स्फीयर है, हॉलो सॉलिड कैसा भी है, रेगुलर शेप है, कैसे आएगा? यू कैन सिंपली टेक इट एज अ सेंटर ना, यही होगा और क्या होगा, है ना? क्लियर? Yes, sir. So center of mass, any regular body, any regular shape will be at center. लेकिन क्वेश्चन में क्या करेगा? What they will do, वो क्या करेगा? They will give you a sphere, same sphere वही है ना, and they are taking out a cavity. Cavity निकाल लेंगे इससे, है ना? This is the sphere, regular sphere है ना? They have taken out, they can scoop out a cavity. एक cavity निकाल ली इससे, एक spherical cavity निकाल लिया है यहाँ से. Just a minute. This one. इसको मैं कुछ और कलर दिखा देता हूँ, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा ना. अभी समझ में आ रहा है? ठीक है. So we have taken out a spherical cavity from a regular sphere, है ना. क्वेश्चन ये था, mass of sphere before cavity is capital M और radius capital R. Radius capital R, mass M. ठीक है. Before cavity is, and you have taken out a cavity, spherical cavity of radius R/2, है ना. Cavity radius is R/2. You have to take this mass, जो भी मास निकाला है, तो इसको कैसे करेंगे? What will be the process to take? कैसे जुगाड़ लेंगे? क्या जुगाड़ लगाएंगे इसमें? कैसे करेंगे? अपना दिमाग लगाओ पहले, फिर मैं बताता हूँ. You have to find out new COM. Find new COM. अब नया COM कहाँ पे आएगा? चलो टाइम सर. कोई कुछ सोच पाया? और हम COMs को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल. देखो what we can do, देखो सिंपल सा देखो, you can take them out, है ना. इस कैविटी को अलग ले लो, है ना. टेक इट एज अ नेगेटिव मास. इसको क्या ले लो? अब ये बताओ, इफ यू टेक इट एज अ नेगेटिव मास, इसको इफ यू टेक एज अ नेगेटिव मास, तो क्या होगा बताओ? नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिलके व्हाट विल बिकम, क्या बन जाएगा? 0. कैविटी विल क्रिएट ना, हाँ या ना बोलो.
यहाँ पे इस पोर्शन में प्लस और माइनस मास मिलके क्या बनाएंगे, कैविटी, हाँ या ना, सही है? हाँ सर। ठीक है, सो टेक दिस मास, इसको स्फीयर बना लो, टेक इट एज ए स्फीयर, एम मास आर, इसका सेंटर मास यहीं पे मान लिया है ना, 0,0, दिस पोजीशन इज 0,0, एंड टेक दिस टू बी ए नेगेटिव मास। नेगेटिव मास कितना आएगा, व्हाट विल बी द नेगेटिव मास, बताओ नेगेटिव मास कितना आएगा? इफ आर रेडियस अगर 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में यू आर हैविंग एम मास, सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई r/2 क्यूब, इसमें कितना मास होगा, इट विल बी m/8 ना, is it clear? So it will be negative m/8. Why negative? Because we are taking this cavity as negative mass, so that when we overlap this cavity with the sphere, it will become 0. हाँ या ना, समझा कि नहीं समझा, बोलो, समझा? हाँ सर। सो इसको आप यहीं पे ऐसे रख दो, ठीक है, नेगेटिव मास को यहीं पे रख दो, इसको क्या मान लिया, -m/8 का, इसका पोजीशन कहाँ माना, दिस पोजीशन इज एट r/2, क्लियर, क्लियर है? सो व्हाट विल बी एक्सियम, इट विल बी पूरे वाले स्फीयर का मास इंटू में 0, फिर दिस इज द नेगेटिव मास -m/8 इंटू में इसका पोजीशन कितना है, दिस पोजीशन इज r/2, तो डिवाइड बाय टोटल मास m माइनस m/8। क्या ये समझ में आया नेगेटिव मास कंसेप्ट? क्या ये नेगेटिव मास कंसेप्ट समझ में आया, नहीं समझा? सर वो m इंटू 0 क्यों करा? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे है ना, 0,0 पे। तो सर इन क्वेश्चंस में हमें ओरिजिन खुद से अज्यूम हाँ करना है। आपसे पूछेगा कि वेयर इज द न्यू सेंटर ऑफ मास, सो यू कैन टेक द रेफरेंस पॉइंट एज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, है ना, ठीक है? m हाँ सर। प्लस m एंड माइनस m क्या बन जाएगा, व्हाट विल बिकम प्लस m एंड माइनस m, इट विल बिकम 0 ना, हाँ या ना? तो ये कंसेप्ट लगाया है, समझे कि नहीं, क्लियर है, इज इट क्लियर? How to be done -m/8? बेटा फॉर द वॉल्यूम ऑफ 4/3 pi r cube the mass of sphere was m, so for this volume if you're taking a sphere of radius r/2, so when you go with the cube of r/2 it will become 1/8 na, so the mass will be -1/8, okay, minus m/8, clear? So we're taking minus m/8 because it is negative mass, right? Yeah, that is the negative mass of a sphere, this cavity. So what actually we are doing, we are taking this sphere to be a solid sphere and taking this cavity as a negative mass, so when you overlap this negative mass with the solid sphere you will get a cavity। समझ में आया कि नहीं आया, समझा, क्लियर है, इज इट क्लियर? Yes sir. चलो नोट कर लो, एक क्वेश्चन है फॉर होमवर्क, इसमें क्या करना है, आपको दिस इज अ स्फीयर एंड दिस इज अ स्क्वायर प्लेट, एक स्फीयर है, उसी के साथ देयर इज अ स्क्वायर प्लेट, this one is of radius r, this one is of length r, mass m, इसमें से we have taken out a cavity, यहाँ से cavity निकाल लिया है, इधर से इस साइड से we have taken out a cavity, समझ गए होगे कितने लेंथ का ना, रेडियस ऑफ कैविटी इज विजिबल, है ना, दिख रहा है ना, एक मिनट,
इसका क्या लेना है स्क्वायर ब्रैकेट का? अच्छा, दैट दैट कैपिटल एम और बोथ ऑफ देम इज बिफोर कैविटी, है ना, बिफोर कैविटी, कैविटी से पहले का है ये, ठीक है। फाइंड न्यू COM masses are before cavity। ये क्वेश्चन घर से करके लाएंगे आप, दिस इज फॉर होमवर्क। तो थ्योरी यही रखेंगे।